Hello my dear students of Standard 9. Welcome to all of you in today's online class. Dear students, it is hereby informed to all of you that your PT1 examination has been scheduled, has been planned. It will commence from 27th July 2020. So before starting examination, before commencement of the examination, you have to revise whatever contents you have learned from each section, from physics, chemistry and biology section. We will revise continuously so that we can make a good effort in examination of PT1. So dear students, there are some information which are given to you regarding the PT1 examinations. Listen carefully. Dear students, link will be sent to you for the examination purpose on your personal account as you are learning through online classes. So students, don't be confused. What will you do there? You have to only open the link and start the questions. You have to deliver your proper answers. There will be answer given in the question paper. Dear students, you have to only remember that you don't press any button, just like press या refresh back buttons before finishing the examination, before completing the examination. After completing the examinations, you have to send. Okay. So dear friends, today we have planned only to revise the content whatever you have learned in the chapter 1, that is the motion. Specific chapters, that is the motion of the physics, terms physics. So we will revise all the contents, and it will be more helpful for those students who could not attend the class so far due to some technical fault. I am talking to all the students who have newly admitted, taken admission in the school. So this video will be helpful for them. So this is the quick revision of the all contents. Okay. So we have planned chapter 1, that is the motion. That is the motion. So dear students, motion chapter में आपको क्या क्या रिवाइज करना है? Motion, ये relative terms, motion, reference point, uniform and non-uniform motion, terms of motions, motions of object in a circular track, distance, displacement, numerical problems based on the equation of motions, graph representation, vector and scalar quantities analysis. अब क्या करेंगे, हम इतने पॉइंट्स पे अभी डिस्कस करेंगे. So dear students, first of all discuss about the terms motion. तो motion क्या होता है students? Motion is the movement of the object. Okay, the change the position of an object with respect to a point. That point is known as the reference point. Reference point का मतलब है कि आपका जो पोजीशन चेंज हो रहा है उसको मॉनिटर कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट कौन कर रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में हम अपनी बॉडी को पोजीशन चेंज कर रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम प्लेन पे उड़े एक साथ, कभी आप स्पेस में जैसे दो प्लेन उड़ रहे हैं तो स्पेस में तो कोई मिड रेफरेंस पॉइंट है नहीं है, कोई फिक्स पोजीशन तो है नहीं है. तो वहां पे क्या होता है कि वहां कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर साइड बाइज दो पैरेलल प्लेन उड़ रहे हों तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि प्लेन उड़ रहे हैं या नहीं उड़ रहे हैं. इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एनालाइज दैट विच प्लेन इज moving and which one is in rest. In fact, both planes are in running position, okay, flying position. जैसे आप वहाँ पे आप स्पेस बाहर झाँक के देखोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, कि लगेगा दोनों रेस्ट पे है पैरेलल, क्योंकि वहाँ कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो है नहीं है. तो जैसे आप बाइक से जाते हो, जब हाई स्पीड से जाते हो तो आपको ट्रीज वगैरह पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं ड्यू टू द रेफरेंस पॉइंट. द रेफरेंस पॉइंट इज द फिक्स पॉइंट विच डिटेक्ट द मोशन. ओके, एंड मोशन इज द रिलेटिव टर्म्स. Therefore, it is called the relative terms. Relative terms क्यों है? क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है. So dear students, motion has been categorized into two categories, uniform and non-uniform motion. तो uniform का मतलब है एक समान, uniform motion, ठीक है. If a body covers equal distance in an equal interval of time, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, that is referred as the uniform. Then you will apply that the body is executing uniform motion. On the other hand, if the body covers unequal distance in equal interval of time, then the body will be said to represent non-uniform motion. So uniform and non-uniform motion can be represented on a graph also. You can plot a graph already. If you plot a graph between uniform and non-uniform motions, if you take at this side the distance, position, and their time is a time.
if you get the straight line, okay, between the distance and time will be considered in second and distance will be considered in meter. तो अगर हम इन दोनों के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें, हमको सीधा स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो इट मीन्स दैट द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देखिए यहाँ से अगर देखेंगे ये बॉडी, ये मिड पॉइंट ऐसे गिराएंगे, इसको इधर लेंगे, तो हमको ये जो मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड इक्वल दिखेगा. तो हम कह सकते हैं कि दिस बॉडी जो इसकी स्पीड है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स ग्राफिकली. यू कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन distance and time, so if you get the graph like that, slope type, curve type, then you can say that this side is distance and this side is a time. Then you can analyze that the graph is not, we are not getting the straight line between the distance and time. So we can expect there that this types of motion is considered as a non-uniform motion. So you will consider there a non-uniform motion. This types of graph may be like that, this type of graph also, and this types of graph. Okay students, और अगर मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच खींचता हूँ, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ खींचूंगा तो ऐसे मिलेगा. इधर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन दैट साइड एंड टाइम इज इन दिस वे. So if we get the line like that which is parallel to the time, okay, it means that velocity is not changing. That is the velocity, there is no any variation in case of velocity. The velocity is considered as a constant, fixed, but time is a changing in this way. We are extending like this way, so you will get the changing time, but you are not getting the increasement in the velocity, या decreasement in the velocity. That's why we can say that the velocity और time में जो relation होता है students, वो uniform होता है बेटा. जैसे acceleration की बात करें, change in velocity, अब velocity में change तो हो ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि वो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है. तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ खींच सकते हैं. वी कैन प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, एंड वी कैन प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. तो डिस्टेंस और टाइम के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे स्टूडेंट्स, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, डिस्टेंस और टाइम के बीच खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी. ठीक है, क्या मिलेगा, स्पीड. और वेलोसिटी और टाइम के बीच जब ग्राफ खींचेंगे और उसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटीज. सो आई हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट्स. So there is a uniform motions, okay, क्योंकि velocity is a constant with respect to that, and you can assume that acceleration is change in velocity. Let us move towards the terms of motions. That is very important students. If you don't know the terms of motions, then you can't explain anything regarding the terms motion. तो terms of motion का मतलब motion में क्या क्या terms use हो रहे हैं. तो जैसे पहला मैंने लिखा स्टूडेंट्स velocity क्या होता है सीधा सा पता होना चाहिए. स्पीड लिखा, पता होना चाहिए. डिस्टेंस बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल पता होना चाहिए. हाँ, तो डिस्कस मैं 1 बाय 1 करता हूं, जरा देखते हैं. अगर मैं बात करूं स्पीड क्या होता है, स्पीड तो सीधी सी बात होती है. स्पीड का डिफिनेशन होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ओके, दैट इज रिफर्ड टू स्पीड. इसकी यूनिट क्या हो, साथ में लिखते चले, मीटर पर सेकंड. क्यों आई, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर एसआई, और टाइम का सेकंड, तो डिवाइड बाई मीटर पर सेकंड. तो हमारी स्पीड जो होती है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज स्पीड रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली टेल्स द मैग्नीट्यूड, ओके, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप्स ऑफ डायरेक्शन. दैट्स व्हाई स्पीड इज कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी. ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी इज कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी. सो देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन speed and velocity. So I have described about the terms speed and velocity. Terms of motions में we are discussing about the speed and velocity. I hope all of you are getting very well. अगर मैं बात करूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है स्टूडेंट्स, what is the difference between distance and displacement? How can you differentiate between distance and displacement? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. अगर मैं मान लो डिस्टेंस लेता हूं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. दैट एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी वेज, ओके.
दैट इज अगर मैं मान लो कोई बॉडी सर्कुलर लेता हूं, चलो पता करता हूं. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ द बॉडी इन सर्कुलर मोशन. बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक. ओके, देयर इज अ सर्कुलर पाथ ट्रैक. तो बॉडी मान लो पहले यहां है, ठीक. तो ये बॉडी क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये घूमेगा इसके चारों ओर घूमेगा. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्टूडेंट्स ये बताओ बेटा, एक चीज बताओ, इसका नेट डिस्टेंस कितना होगा. तो आप कहोगे सर ये जब यहां से चलना शुरू किया, यहां जाएगा, यहां से आएगा, फिर यहां पे आएगा, तो इसका नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्टेंस जो होगा वो इसका सरकमफेरेंस होगा. वो सरकमफेरेंस कितना है, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर. अगर मैंने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी ये दिखेगी, ठीक है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ इसका सेंटर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, ठीक. आर होगा ना, तो आर बेटा होगा. तो यहाँ पे मैंने अगर आपसे पूछा कि इसका पूरा आप क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी यहां से चल के यहां ऐसे आ रही है और फिर अपने पोजीशन पे आ जा रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, 0. लेकिन अगर मैं इसको सेमी सर्कल मान लूं, इफ यू अज्यूम द सेमी सर्कल, ठीक है. तो अब अगर सेमी सर्कल मान लूं, तो सेमी सर्कल में आप देखिए यहां से बॉडी गई, यहां पे ऐसे आई, ठीक है. तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, दैट इज 2r, b इक्वल टू r प्लस r, दैट इज 2r, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स. ओके, शॉर्टेस्ट मतलब छोटा से छोटा पाथ. ओके, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया, टर्म्स ऑफ मोशन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ मोशन. एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ए जो होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है स्टूडेंट्स. v माइनस यू अपॉन टी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी घटा दिए अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रिफर्ड एज अ एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन वेलोसिटी, तो दैट इज रिफर्ड एज एक्सीलरेशन. यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड. 1 सेकेंड नीचे देखिए और बैठा है, टाइम का सेकेंड हो जाएगा, तो सेकेंड क्या हो गए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट किसकी होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन. तो स्टूडेंट्स आई हैव जस्ट कम बैक. तो यूनिट क्या निकला यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ acceleration. Now let us move towards the another point, that is acceleration का आपका क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्टूडेंट्स अगर रिटार्डेशन पूछे स्टूडेंट्स, रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज हो, कभी कभी क्या होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है. तो एक्सेलरेशन का निगेटिव में आ जाना क्या होता है, रिटार्डेशन होता है स्टूडेंट्स. और रिटार्डेशन हमेशा माइनस साइन में आता है. उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द सेम यूनिट. यू हैव टू फॉलो द यूनिट. ओके, जैसे मैंने स्पीड का यूनिट बताया मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट बताया मीटर पर सेकंड, तो उसी प्रकार एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्टूडेंट्स ओके, लेट अस मूव टर्म्स ऑफ मोशंस. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर ट्रैक. जस्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर ट्रैक. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है. सर्कुलर ट्रैक मतलब सर्कल में घूम रही है. इफ द बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक, अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है, तो डियर स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल कि अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है, सॉरी ओके जस्ट आई एम टेकिंग द डस्टर देयर साइड. अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है तो आपको क्या बताना होगा स्टूडेंट्स, सर्कुलर ट्रैक में. तो आप ये बताइए कि इसमें कौन सी स्पीड और वेलोसिटी कौन सी कांस्टेंट होगी, कौन सी चेंज होगी. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर मान लो हम एक छोटा सा स्ट्रिंग में एक छोटी सी स्टिक बांध दें, पत्थर, ठीक है, उसको घुमाएं ऐसे ऐसे, तो वो गोला गोला घूमेगा. और जैसे ही आप उसको छोड़ देते हो तो वो एक सीधा फिर घूम के नहीं जाता, वो जहां से आप छोड़ोगे वो सीधा टेंजेंट बनाता हुआ चला जाता है. जैसे मान लो यहाँ सेंटर है, हम इसको रस्सी से बांधे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है चारों तरफ. ठीक,
तो ऑब्जेक्ट का अगर कहीं भी हम उसका पोजीशन देखें तो ये ऑब्जेक्ट देखो इसका इधर जाएगा, अगर छोड़ेंगे तो ऐसे जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रहा तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ है तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड तो फिक्स है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो एवरी पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है स्टूडेंट्स। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज द टेंजेंशियल, यानी सर्कल में अगर हम यहाँ टच करते हुए लाइन सीधा स्ट्रेट लाइन खींच दे तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, टेंजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई सर्कुलर ट्रैक में कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसका स्पीड क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है, वेलोसिटी चेंजेस, ओके, वेलोसिटी चेंजेस एंड स्पीड इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट क्वांटिटी देयर। तो मोशन में यहाँ पे हमने बताया कि सर्कुलर ट्रैक में क्या घूम रही है, तो सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है तो आप इसको देख सकते हो स्टूडेंट्स। अब अगर मान लेते हैं यहाँ से, ठीक, तो ये देखिए सर्कुलर ट्रैक में यहाँ गई बॉडी, फिर यहाँ पे आ गई, ठीक, तो ये आपका हो गया। सर्कुलर ट्रैक में यहाँ पे हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, नोट डाउन देयर। तो ये सर्कुलर ट्रैक में आपको मैंने बता दिया स्टूडेंट्स। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके तीन होते हैं, पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होते हैं स्टूडेंट्स। ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आपके होते हैं, ठीक है। ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को हमको यूज करना है अच्छे से। जैसे मान लो हम कह दें कि कोई ऑब्जेक्ट को हमने 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर प्रोजेक्ट कराया, ठीक है, तो कितनी देर तक ऊपर हवा में रहेगी, तो उसका टाइमिंग क्या होगा। तो मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड से भेज रहे हैं तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स, ओके। 20 मीटर पर सेकेंड से हमने उसको ऊपर भेज रहे हैं, टाइम आपको निकालना है, ठीक है। जब बॉडी ऊपर जाती है, मैक्सिमम ट्रेजेक्टरी पाथ को ट्रेवल करती है, गेन करती है, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाती है, तो वहां थोड़ी देर तक क्या होती है, रुकती है। तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस, यहाँ पे लेंगे gt स्टूडेंट्स, और यहाँ माइनस साइन ले लेंगे क्योंकि हम किसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, ग्रेविटी के। तो एक्सीलरेशन जो हमारा होता है दैट इज जस्ट काइंड ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर होगा। यहाँ पे जो हमारा g है ये निगेटिव साइन क्यों लिया गया स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जब ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी में धीरे धीरे डिक्रीजमेंट होता है, लेकिन ऊपर से अगर नीचे फेंकते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि अर्थ जो होती है अट्रैक्ट्स ऑल बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। स्टूडेंट्स नोट डाउन देयर क्लियरली, ओके। सो यहाँ पे मैंने बोला कि हाँ, यहाँ रख दीजिए 0, यहाँ रख दीजिए 20, ठीक है, माइनस जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर होगी, यहाँ टी आ जाएगा, ठीक है। तो टी इक्वल टू 20 अपॉन जी टी, ठीक है। तो यहाँ पे टी इक्वल टू आ गया 10 टू जा 20, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड्स रहेगा वो ऊपर, 2 सेकेंड तक ऊपर रहेगा। अगर हम 20 मीटर पर सेकेंड से उसको फेंक देंगे ऊपर तो 2 सेकेंड तक रहेगा। एक क्वेश्चन इसमें अराइज और हो सकता है स्टूडेंट्स कि ये जो अब बॉडी को अगर हम ऊपर किसी सर्टेन वेलोसिटी से फेंकें तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, कितना दूर तक जा सकता है, कितना दूर तक जा सकता है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड यूज करना पड़ेगा। ये स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, देखो स्टूडेंट फिर लेंगे माइनस 2g एच मैक्स ले लेंगे, ठीक है। एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हो कि फाइनल, जब मैंने बताया कि जब मैक्सिमम हाइट जाएगा फॉर वी। डियर स्टूडेंट्स, whatever we have discussed today, homework is given on the discussion of today's video. So note down the homework completely and we will continue revision work process. Whatever contents we could not revise today, it will be continued in next video, whatever the contents which are left. So take a screenshot of the homework today's. Take a screenshot. Dear students, take a screenshot and revise the all chapters completely. Students, take a screenshot of today's discussion and revise the all terms of motion completely